اس ویڈیو میں آج آپ کو اپنے ایک خواب کے پورے ہونے کی داستان سنانے جا رہا ہوں۔ یہ خواب تھا کینیڈا کے خوبصورت صوبے البرٹا میں واقع بینف کا نیشنل پارک دیکھنا۔ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا خواب، راکی ماؤنٹینز کے دلکش مناظر دیکھنے کا خواب اور برف سے ڈھکے پہاڑ، نیلگوں جھیلیں اور وہ قدرتی سکون اور وہ قدرتی مناظر جسے عام طور پر لوگ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہم سمر میں جا رہے ہیں، ہم سمر میں پہنچے ہیں، اس لیے برف تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کا قدرتی مناظر کے لحاظ سے یہ سب سے خوبصورت خطہ اور سب سے خوبصورت سیر کرنے کی جگہ ہے۔ جاپان کے سفر سے واپسی کے بعد ہم نے کیلگری میں 3 دن رکنے کا پلان بنایا۔ کیلگری ایئرپورٹ پر ہمارے پرانے دوست جو جاپان میں بھی کبھی ہمارے ساتھ تھے، اب کراچی میں بھی ہمارے ساتھ تھے، بابر یوسف ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سراج قمر صاحب، آپ نے سلام کہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمام برادروں کو سراج بھائی کا سلام پہنچ گیا۔ سراج بھائی وعلیکم السلام۔ جمیل بھائی کا بھی سلام قبول۔ جمیل بھائی کو بھی سلام، تمام بھائیوں کو بہت بہت سلام بھائی۔ اور بابر بھائی جو ہے وہ پہلے سے موجود تھے اور فوراً پیسفل ایئرپورٹ ہے، ہم آرام سے باہر آئے، بیٹھے، موسم اچھا ہے، 12 ڈگری سینٹی گریڈ، نائس، اور قریب میں ہوٹل ہے نا؟ ہوٹل تو یہ بہت قریب ہے۔ بابر بھائی نہ صرف ایک بہترین دوست ہیں بلکہ ان کی فیملی بھی بہت محبت کرنے والی ہے، اور اگلے ہی دن انہوں نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ لے کر بینف نیشنل پارک کا سفر شروع کیا۔ ہم کیلگری سے مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے ہم شہر سے نکل کر راکی ماؤنٹینز کی طرف بڑھنے لگے، موسم بدلنے لگے، آسمان اور زمین کے رنگ گہرے ہوتے گئے اور ہوا میں خنکی اور تازگی آتی گئی۔ کیلگری البرٹا کا دل ہے۔ یہ شہر 1.6 ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ کینیڈا کے سب سے بڑے اور متحرک شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کا لائف اسٹائل جدید بھی ہے اور قدرت کے قریب بھی ہے۔ کیلگری کے خاص مقامات میں کیلگری ٹاور، اسٹیمپیٹ فیسٹیول اور باو ریور شامل ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات کہ کیلگری سے بینف تک کا سفر تو اگر صرف 1.5 سے 2 گھنٹے کا ہے، لیکن یہ 2 گھنٹے زندگی کے یادگار ترین لمحے بن جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے دنیا دیکھی ہے، جو دنیا کے مختلف خطوں میں جا کے قدرتی مناظر کو قریب سے دیکھ چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بینف سے بہترین جگہ نیچر کے لحاظ سے کوئی اور نہیں دیکھی۔ اور ہم نے تو اتنی زیادہ قدرتی جگہ نہیں دیکھی ہے، لیکن ہماری زندگی میں جو مقامات آئے ہیں یقیناً یہ ٹاپ آف دی لائن ہے۔ ہم نے راستے میں بار بار گاڑی روکی، کبھی صرف تصویر کھینچنے کے لیے، کبھی خاموشی سے قدرت کا لطف لینے کے لیے، اور کبھی کچھ کھانے پینے کے لیے۔ جیسے ہی ہم بینف پہنچے، ہمیں لگا جیسے کسی خواب میں داخل ہو گئے ہوں۔ پہاڑوں کے درمیان بسا یہ چھوٹا سا قصبہ اور اپنی رنگ برنگی دنیا، اپنی رنگ برنگی دکانوں، خوبصورت کیفیز اور مسکراتے چہروں کے ساتھ کسی فلمی سین کا ایک حصہ لگتا تھا۔ راستے میں ہم نے درجنوں جھیلیں، چھوٹے دریا اور گھنے جنگلات دیکھے۔ اگر آپ خوش قسمت ہو تو آپ کو راستے میں ہرن بھی دکھیں گے، ایلب، یا یہاں تک کہ ریچھ بھی دکھائی دے سکتے ہیں۔ وہاں سے نکل کر ہم کسی جھیل کی طرف گئے۔ اس جھیل کے بارے میں ہمارے کسی دوست نے فون پر بتایا کہ آپ کو پہاڑوں کے اوپر جانا ہوگا۔ پہاڑوں پہ سفر طے کرتے ہوئے جب ہم پہنچے تو ایک بہت خوبصورت جھیل تھی۔ اس جھیل کے اندر آپ دیکھیں یہاں گرین پانی ہے اور اس کے اوپر بھی پہاڑ ہے، اور ایک جھیل اور اوپر اس پہاڑ کے، ہم جو اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے زیادہ، یہاں تک تو ہم گاڑی سے پہنچ گئے تھے۔ ٹھنڈا پانی اور بہتا پانی اور آس پاس لوگ دھوپ میں بیٹھ کے تصویریں بنا رہے ہیں۔ یہ منظر بہت اچھا ہے۔ اگر آپ بھی یہاں آئیں تو اس جھیل پہ بھی ضرور آئیں۔ اس کا نام گراس لیک ہے اور ارد گرد دونوں طرف پہاڑ اور ساتھ میں ایک نیلا پانی کے ساتھ خوبصورت جھیل۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور لوگ گاڑیوں پہ یہاں پہنچتے ہیں اور تصاویر کھنچواتے ہیں، وقت گزارتے ہیں۔ ہم نے یہاں
अच्छा खासा वक्त गुजारा और अब यहाँ से हमें निकलना है, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए हाइकिंग करनी होगी। लोग आ रहे हैं, हाइकिंग करके ऊपर चढ़ते हैं, वक्त गुजारते हैं। हमारे दोस्त ने कहा कि वो अक्सर आते हैं और अपनी बेगम के साथ हाइकिंग करते हुए ऊपर पहुँचते हैं। असल झील इसके ऊपर है, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम हाइकिंग करके ऊपर पहुँचें। ना हमारे मेज़बान इस वक्त तैयार थे इसके लिए। दोबारा आए तो हम तैयारी के साथ आएंगे और इसके ऊपर जाकर उस झील का भी नज़ारा करेंगे। इस तरह की झीलें यहाँ पर बहुत सारी हैं और यहाँ पर लोग इन रिज़ॉर्ट्स पे इसीलिए आते हैं कि हाइकिंग भी करते हैं, मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, पानी भी देखते हैं, अच्छा वक्त गुजारते हैं और इसको एक यादगार ट्रिप बनाते हैं। ग्रीन लेक, ग्रास लेक, सॉरी ग्रास लेक, ग्रास लेक, ग्रास लेक, ग्रास लेक आप चल के भी देख सकते हैं ग्रास। हाइट पर पैसे पूरे लिए तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी जी, आप देखेंगे लेक लुइस मैंने दिखाई आपको उसकी पार्किंग। हाँ, पार्किंग जगह नहीं मिली, हम क्या करें, है ना। बाबर और उनकी फैमिली ने मुझे बैंफ की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखने का जो मौका दिया, उसका शुक्रिया अल्फाज में मुमकिन नहीं। तो ये क्यों लाए थे यहाँ? आपको अल्बर्टा घुमाना आए थे, घुमाने के लिए लाए थे और आपको बैंफ में स्पेशली ये बैंफ के साथ ही कनाडा का जो ये वो वैली में है, बेसिकली वो वैली की और हमें आपकी मुलाकात करवानी थी बियर से। जो नहीं हो सकी। नहीं, ये जगह पानी का कलर क्यों चेंज होता है बाबर साहब? शेडो है ना, देखिए पहाड़ जहाँ आ गया, पहाड़ के शेडो आ गया तो दूसरा दिख रहा है, वो जो ग्रीनरी सामने उसका कोने पर शेडो आ रहा है, वो ग्रीन दिख रहा है, वो देखिए सामने देखिए वो आगे जो है ना वो ग्रीन है। हाँ देखिए वो ग्रीनरी का शेडो आ रहा है ना, यहाँ पहाड़ डार्क बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ के ऊपर आने के बाद ये जगह देखी मैंने, रुक कर ये देखा। बहुत हसीन। ये इस जगह पे आपको क्या चीज़ अच्छी लगी? इस लेक में बहुत तीन हसीन कलर लेक है है। जी और ये बहुत हसीन जगह है जी, और पहाड़ों के दरमियान। ऊंचाई पर काफी। ऊंचाई वाले पहाड़ों के बीच में हम यहाँ पे नहीं, खड़े पहाड़ तो ऊंचाई वाले ही होते हैं, झील और आगे जाना भाई। हाँ हाँ, आगे जाना है, जहाँ पे खत्म हो। बहुत अच्छा। चले ना। आप तैयार हैं? ये बाबर साहब बता रहे हैं कि ये जगह वही है जहाँ हैं। एसी मत चलाएं। G7 की मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम हवा तो आने दो। आलमी लीडर आए थे। एसी की जरूरत नहीं है, बाहर भी ठंडा है यार। नहीं नहीं, बकरी ये मोबाइल ये वो है मार्को टाइप की जो थी ना, पीछे पे है तो नहीं रोड में ये ऐसे क्यों है? नहीं ये उनकी पहाड़ी बकरियाँ तो नहीं है ये? हाँ हाँ पहाड़ी बकरी जंगली बकरी है ना, ये पहाड़ी बकरी है बस ये। ओह हाँ, ये जो ये लेक के साथ जो है ना खड़ी हुई बकरी, इसकी ले ओके उधर देखिए। ये पे नहीं आएगी ना। हाँ देखिए, अच्छा हाँ। इनकी जो देखिए वो तो कुदरती उतर रही लैंप्स होते हैं है ना, और ये जैसे जैसे गर्मी आएगी खाल उतर जाएगी लैंप खाले। की तरह नहीं इसके ऊपर बाल के। ये वो नहीं लग रहा है जैसे हमारे वो उधर हेयर्स हैं वो रैबिट टाइप के, कि उनके ऊपर कलर दूसरा चढ़ जाता है। हाँ हाँ ये वो उसी तरह से है ना। ये देखो, ये जो ना, ये ऊपर से जो ना, हाँ ये देखिए, ये उसी होती जा रही है और नीचे हड्डियाँ भी नहीं पता चल रही होंगी कहाँ। ये खिड़की खोली तो और हम ऊंचाई पे है ना इसलिए, और वैसे भी हवा नीचे आप देखें ना। ये है ग्रेस लेक, कुदरत का वो आईना जहां आसमान, बादल और पहाड़ अपनी अक्कासी खुद देखते हैं। खामोश पानी, हल्की हवा और इर्द गिर्द के पहाड़, जैसे वक्त यहीं रुक गया हो, सिर्फ हमें इस मंजर को महसूस करवाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इस जगह को खास तौर पर उन लम्हों के लिए तराशा हो जब इंसान सिर्फ सांस लेना और सुकून महसूस करना चाहे। ग्रेस लेक के किनारे बैठकर इंसान खुद से मिलता है, सोचें ठहर जाती हैं और दिल धड़कना नहीं, बस महसूस करना चाहता है। ये झील सिर्फ पानी का नाम नहीं होता, ये एक एहसास होता है, ये एक खामोश पैगाम होता है कि ज़िंदगी की खूबसूरती सादगी में छुपी होती है। ये मंजर हमें
याद दिलाते हैं कि सुकून खरीदने से नहीं, कुदरत के करीब जाकर हासिल होता है। हम लेक लुइस की तरफ जा रहे थे और करीब पहुंचकर हमें लगा कि यहाँ पार्किंग फुल हो चुकी है और लोग बहुत दूर गाड़ियाँ खड़ी करके पैदल जा रहे थे। बताया जाता है कि मोरिन लेक और सल्फर माउंटेन पे केबल कार के जरिए पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचना एक बहुत ही अलग तजुर्बा होता है। हमारा ये सफ़र सिर्फ एक कुदरती मकाम की सयाहत नहीं था, बल्कि एक जज्बाती सफ़र भी था, दोस्ती, शुक्रगुजारी और फितरत से जुड़ने का। ऐसे लम्हात ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने जापान से वापसी के बाद वक्त निकालकर कैलगरी में बारो भाई के साथ जो वक्त गुजारा वो अगरचे मुख्तसर था मगर बहुत यादगार सफ़र था। और आज आप सबके साथ ये लम्हात शेयर करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो लोग कनाडा आने का इरादा रखते हैं वो अपनी फहरिस्त में बैंफ को ज़रूर शामिल करें। मैंने अपने सफ़र का हाल तो यहाँ बयान किया और कुछ बातें मोटी मोटी जो मैंने बाबर साहब से सुनी थी और इंटरनेट पर पढ़ी थी वो आपके सामने पेश कर दी। लेकिन आखिर आप ये जानना चाहेंगे कि ये इतना मशहूर पार्क है और अगर इसमें लोग दुनिया भर से आते हैं तो आखिर यहाँ की ख़ास बातें मैंने क्यों नहीं बताई। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि मैं इसमें कुछ मज़ीद मालूमात आपके सामने रखूं। हम भी जब वहाँ से गुज़र रहे थे तो हमारे जहन में भी सवाल ज़रूर उठा था कि आखिर ये जगह इतनी मशहूर क्यों है, लोग यहाँ क्यों खिंचे चले आते हैं। हमें पता चला कि बैंफ नेशनल पार्क कनाडा का पहला और सबसे कदीम नेशनल पार्क है जो 1885 में कायम किया गया था। ये पार्क छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा है। इसका रकबा बताया जाता है कि 6,641 मुरब्बा किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं कि 6,641 मुरब्बा किलोमीटर, बड़े बड़े शहर भी इतने रकबे पर नहीं होते, इससे कम पे होते हैं। इसे यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में टॉप पे रखा गया है। हर साल यहाँ 40 लाख से ज़्यादा सयाह दुनिया भर से आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर पूरे कनाडा से आते हैं। सबसे ज़्यादा विजिटर ओंटारियो से आते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया से आते हैं, सैस्कैचुअन से, क्यूबिक से और ख़ुद अल्बर्टा से भी आते हैं। अल्बर्टा में शायद ही कोई बचा होगा जिसने यहाँ की सैर नहीं की होगी। मौसम गर्मा में जब स्कूलों की छुट्टियाँ होती हैं तब यहाँ की सड़कों पर हर तरफ खेमे, कैंपर, वैन्स और विजिटर का रश आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग कैलगरी एयरपोर्ट के जरिए यहाँ पहुँचते हैं जो बैंफ से सिर्फ 1.5-2 घंटे के फासले पर है। कुछ लोग एडमिंटन या वैंकूवर से भी ड्राइव करके आते हैं और वो ये लंबा सफ़र सिर्फ एक ही मकसद के लिए करते हैं, कुदरत को महसूस करने के लिए, नेचर के करीब आने के लिए। इतना बड़ा नेशनल पार्क और इतना कुदरती पार्क शायद ही दुनिया में कहीं हो। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अखराजात कितने आएंगे। बैंफ का दौरा एक मिड क्लास फैमिली के लिए एक अगर मिड बजट बनाएंगे तो बताया जाता है कि दरमियाने दर्जे का होटल यहाँ 150 से 300 कैनेडियन डॉलर फी रात के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं तो पार्क्स कनाडा के ज़ेरे इंतज़ाम कैंप ग्राउंड्स पे 30 से 50 डॉलर फी रात में आपको मिल जाता है। अगर खाने पीने के अखराजात की बात करें तो एक दिन में तकरीबन यहाँ 30 से 50 डॉलर तक का खर्चा होता है। और अगर आप सिर्फ दिन गुजारना चाहते हैं, डे ट्रिप करना चाहते हैं और वापस जाना चाहते हैं तो वो आप डे पास भी खरीद सकते हैं जो 10 से 20 डॉलर का होता है। बहुत से लोग बसों में आते हैं, मुझे उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिली। ये सब कुछ एक ऐसी जगह के लिए है जहां आपको झीलों के बिल्कुल नीले पानी, बर्फपोश पहाड़, साफ शफाफ हवा और कुदरत की खामोशी और कुदरत की जो दूसरी नेचर की चीज़ें हैं, चरिंद परिंद हैवानात, वो आपको नज़र आते हैं। लेकिन बढ़ती हुई सयाहत के साथ एक अहम चैलेंज भी होता है, दुनिया के हर मुल्क में होता है, और वो है यहाँ पर कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। कनाडा की हुकूमत और ख़ास तौर पर पार्क्स कनाडा जो इदारा है वो बैंफ की खूबसूरती और हयाती तनव्वुर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्शन लेते रहते हैं। वो लोग कुछ मखसूस इलाकों में गाड़ियों का दाखिला महदूद कर दिया गया और आए दिन कुछ न कुछ इलाकों को
وہ روک دیتے ہیں کہ اب یہاں پہ گاڑی آپ کی نہیں جا سکتی۔ کچھ بہت حساس مقامات ہیں، وہاں پر آپ صرف پیدل یا سائیکل کے ذریعے تک جا سکتے ہیں، وہاں پر گاڑیاں جاتی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ لوگ سائیکلوں پر ادھر سے ادھر آتے جاتے نظر آئے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے رات کے اوقات میں کچھ راستے بالکل بند کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات، سیاحوں کو ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے ہر جگہ سائن بورڈ اور آگاہی کی کیمپین چلائی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آنے والی نسلیں بھی وہی مناظر دیکھ سکیں جو آج ہم دیکھ رہے تھے۔ تو اگر آپ بھی بینف آنے کا سوچ رہے ہیں تو صرف آنے کا ارادہ مت کیجیے، اسے سمجھنے، محسوس کرنے اور اس کو سنبھالنے کا ارادہ بھی کریں۔ یاد رکھیے، ہم سب سیاح ہونے کے ساتھ ساتھ قدرت کے محافظ بھی ہیں۔ تو اس ویڈیو میں یہ تھی ہماری بینف کے ٹرپ کی کہانی، ایک ایسا سفر جو صرف پہاڑوں کے درمیان نہیں، دل کے اندر بھی طے ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور کمنٹس میں بتائیے کہ اس ویڈیو میں کیا کمی رہ گئی اور میں اپنی آئندہ ویڈیو کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں۔ اگر آپ بینف جانا چاہیں گے یا اگر آپ جا چکے ہیں تو آپ کی سب سے یادگار جگہ کون سی تھی، یہاں آپ کمنٹ میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے بارے میں جانیں۔ میں ہوں سہیل بلخی اور یہ تھا بینف کا منظرنامہ، کینیڈا کے دل سے آپ کے دل تک۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔